तो मैंने एक ड्रग इंस्पेक्टर से मेरी बात हो रही थी, इट वाज अ वेरी सीनियर गाय. ही वाज टेलिंग कि हम लोग ये बार बार रेड करते हैं और ये प्रोडक्ट्स को बंद करवाते हैं. ये बहुत मिलते हैं टियर 3 टियर 2 सिटीज़ में, केमिस्ट से लोग डायरेक्टली खरीदते हैं. और ये लोग बड़े इंटरेस्टिंग नाम भी रखते हैं, जैसे सुंदरी, गोरी, हाँ इस टाइप के नाम रखते हैं. वी हैव गट माइक्रोबायोम ऑल्सो, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है. So we have probiotics, prebiotics which will help with that as well. रात वाला प्रोडक्ट आप दिन में लगाओगे तो ऑफ कोर्स बहुत इचीनेस लगेगी, और रात को लगा के आप सो सकते हो उसको. तो बहुत ना इसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स भी अगर एजुकेट करें तो बेटर रहेगी. उसको थोड़ा नीचे लगाना है. लोग इंडिया में क्या करते हैं ना, पूरा गोल गोल घुमा लेते हैं प्रोडक्ट को. मतलब I know. So recently she called me, she's like मेरे को बहुत खराब है, डार्क सर्कल्स हो गए, please help me. And I told her कि ठीक है, I'll give you one product, उसमें AM PM दोनों है, लगा ले. And luckily she was consistent this time. So within 2 months she called me, she's like यार too good. इतनी खुश हो गई like बहुत अच्छा. That is one product which I also stock. या तो सोफा आते हैं, सब खुश है, पिलो पे लेट जाएंगे और फिर लगाएंगे और फिर आंखें ऐसे करेंगे, वो अंदर चला जाएगा आंख के. हाँ नहीं, बिल्कुल लकीली मैंने एक भी नहीं एक्सपीरियंस किया ऐसे. बट दैट एंड द कॉपर पेप्टाइड दैट वाज लॉन्च्ड, these two are like my favorites. And the AHA lotion, AHA HQ वाला I keep but at least वो macular amyloidosis वगैरह में बहुत patients को है. And even your Nigri Fix has a Nigri Light, हाँ, so that और थोड़ा potent है. हाँ, तो इसलिए मतलब I dispense it. Yeah. So it is one of those things. Are you ready? हाँ चलिए, कर रहे होंगे शायद, हम इस पर से भी कुछ निकाल लेंगे बाद में. Welcome to Get Skin Smart with Shelly. Today I have a very special guest, a very young and cute doctor, Dr. Mansi Shirolikar. She's a Maharashtra state topper, a very famous dermatologist. She has more than 450,000 followers, a very strong digital community. Today we'll be discussing on a very interesting topics like air pollution, AQI, skin damage because of blue lights, using phone all the time, being on the laptop all the time, and how we have to get ready for 2026. So doctor, tell me something about your journey, when you started your career, and how did you gathered so many followers? Actually, I started in 2020, COVID. So actually, I wanted to make a page way before that, but I just didn't have the time. So I used to have an 8 to 12 or 12 to 8. I had like all of that going on. And then finally with COVID, we had such a long break. And there was actually so much misinformation that time. Now I feel people are a lot more aware. Back then I remember because, like hyaluronic acid fillers होते हैं, right? हाँ. तो मेरी friend थी जिसने बोला था कि मैं ये which are 20,000 plus. तो उसका था कि मैं ये क्यों लगाऊं, मेरे को तो सीरम मिल रहा है हाइलुरोनिक एसिड का 1000 रुपये में. सो आई वाज लाइक ये ऐसे नहीं होता. एंड आई रियलाइज तब कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन है, कितना गैप था, एंड आई रियली वांटेड टू एडुकेट. तो इसलिए आई हैड स्टार्टेड द पेज. आई थिंक April 2020 में आई स्टार्टेड. एंड एनीवे आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन मेकिंग ग्राफिक्स एंड स्टफ. तब तो रील्स भी नहीं होते थे. सो I did that, and tab it just grew. I think at that time itna skincare actual information coming from a doctor was not there. So it just kind of grew since then, and I was doing online consultations also because of COVID. लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनको घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन में थे and everything. So it just kind of grew from there, and now we're here. So do you think people are really now, if I go back 5 years back, 2020 से लेके 2025 end हो रहा है, people are getting more aware, more educated, कि अगर हम compare करें 20 का viewers और 25 का viewers, they are more mature? Definitely. I think there is no comparison कि 2020 या 2019 का average consumer and आज के consumer में there is worlds apart. They will not recognize them. I may not recognize myself from 5 years ago क्योंकि इतना ज़्यादा skincare knowledge है, इतना it's like a revolution. आपके ingredients के बारे में, या फिर मतलब लोगों को ingredients के बारे में भी पता है, उनके खुद के concerns उनको पता है कि melasma क्या है, pigmentation क्या है वगैरह. People are quite more aware. But the thing is कि awareness
is good, but then some are also hyper aware, which can be a problem ki every small thing then they become very microscopically judging their skin, which is not ideal. Yeah. But definitely the awareness has skyrocketed. ठीक है, हमने अवेयरनेस के बारे में तो काफ़ी बात की. हम लोग अब लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. अभी द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन इज AQI. Right. बहुत बुरा है. दिल्ली इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ फॉर AQI, I mean, not for something good. And I think North India पूरा ही grip में है bad air pollution, and even Bombay is not far behind. Yes. It's quite bad here. But tell me how much damage it causes. कितना खराब करता है skin को? So AQI का क्या होता है कि जब AQI is basically your air quality index, right? मतलब कितना pollution है in the air. So apart from causing actual problems जैसे breathing problems, asthma, everything which I am not the expert to cover, but definitely skin में इतनी प्रॉब्लम्स होता है बिकॉज इट डैमेजेस हमारी स्किन का जो माइक्रोबायोम होता है उसको डैमेज करता है. माइक्रोबायोम मतलब आप फॉर एग्जाम्पल ले लो कि इफ देयर इज अ रेन फॉरेस्ट और उसमें कोई इन्वेजिव स्पीशीज आ गई, राइट, तो वैसे ही हमारे स्किन पे बैक्टीरिया होता है एंड जो बैलेंस रहता है वो इम्बैलेंस हो जाता है. सो देयर इज इंक्रीज इन बैड बैक्टीरिया. ओके, इसके अलावा जो पोल्यूशन के फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन बैरियर को ऑक्सीडाइज करते हैं, डैमेज करते हैं, जिससे वो ज़्यादा वीक हो जाता है. तो जैसे आपको शायद वो इंस्टेंटली ना महसूस हो, बट मे बी विद इन अ वीक ऑफ लिविंग इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आपको फील होगा कि अरे ये मॉइस्चराइजर तो मुझे चलता था, क्या हो गया, नाउ इट्स फीलिंग सेंसिटिव, इट्स फीलिंग टाइट, इट्स फीलिंग इरिटेशन, स्टिंगिंग. तो जो आपके नॉर्मल प्रोडक्ट्स है वो भी आपको अभी परेशान कर सकते हैं बिकॉज आपका बैरियर, राइट, ड्राइनेस होती है, रिएक्टिविटी हो जाती है, रेडनेस बढ़ जाती है, स्टिंगिंग बढ़ जाती है, पिंपल्स आ जा सकते हैं इसमें. एंड जितना आपका बैरियर उतने में डैमेज होते जाएगा, that is how it will worsen. This AQI will worsen your skin definitely. So on the lighter side, something interesting कि because of this bad AQI and bad air pollution, एक ऊपर फिल्म सी है, अगर आप प्लेन से देखो नीचे तो पूरे क्लाउड्स की एक लेयर बनी हुई है. बट डू यू थिंक इट्स काइंड ऑफ अ SPF 20 बिकॉज ऑफ क्योंकि UV रेज आर नॉट डायरेक्टली कमिंग. UV इंडेक्स शायद थोड़ी कम हो, बट आई डोंट थिंक उसका इतना बेनिफिट है जितना लॉस हो रहा है. वो तो है, बट या डेफिनेटली. बट सनस्क्रीन तो डैमेज थोड़ा कम हो गया है. आई मीन बट लगानी तो वही है, हमें लगानी तो पड़ेगी. राइट. और मुझे लगता है थोड़ा पोल्यूशन से स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है, क्योंकि आपका जो बैरियर ही इम्बैलेंस अगर हो गया है तो फिर ऑफकोर्स वो तो ड्राई होना ही है, क्योंकि जैसे बैरियर डैमेज हो जाता है तो ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस बढ़ जाता है, तो अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है, तो ड्राइनेस, टाइट फीलिंग आती है एकदम मुंह धोने के बाद. तो solution is to apply a very good moisturizer. Take care of your skin more than you usually do. So yes, definitely. एक तो मॉइस्चराइजर आपको लगाना है, उसमें सेरेमाइड, हाइलुरोनिक एसिड देख के लगाना है आपको. सनस्क्रीन यूज़ करनी है. As soon as you come home, wash your hands, wash your face, take that layer off your skin. अगर आपको मिसलर वाटर से या फिर क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग बाम से धोना है फेस, इवन बेटर. एंड देन ज़्यादा करके आप अगर एक्टिव्स यूज़ करें जैसे कि रेटिनॉल हो गया या एक्सफोलिएटिंग एसिड्स हो गया, तो उसको भी आप गैप दे के यूज़ कीजिए, या फिर पहले एक मॉइस्चराइज़र का लेयर लगा के वो लगाइए, या फिर पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो, और बहुत सेंसिटिव हो रही है. राइट. Coming to another interesting question, how much damage do these laptop use or phone causes to your skin? Actually, so exactly, blue light. So blue light is kind of misunderstood, I feel, but matlab it's not completely, it's mildly guilty also. So blue light का main जो source है, it is not screens, it is the sun. The sun is the biggest source of blue light. बट क्या है कि सो ऑफकोर्स सनस्क्रीन आपको लगानी ही है, बट क्या है कि अभी हम जितना स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट फॉर वर्क, इवन घर आके व्हेन यू आर स्क्रोलिंग, या फिर पीपल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, दैट ऑल्सो कैन एग्रीवेट इट. ओके, सो अगर आपका योर मेन कंसर्न कैन नेवर बी ब्लू लाइट, योर मेन कंसर्न शुड बी UV रेज एंड सन एक्सपोजर. बट डेफिनेटली अ सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटर, अगर आपको मेलाज्मा है, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स की तकलीफ होती है, तो डेफिनेटली अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर टू दैट इज ब्लू लाइट. अगर आपको स्क्रीन एक्सपोजर, LED लाइट एक्सपोजर ज़्यादा है तो इसके लिए बस अभी वी गेट ब्लू लाइट प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन्स, क्योंकि इसका जो मेनली जो ब्लू लाइट का डोज होता है, राइट, सो फ्रॉम स्क्रीन्स, फ्रॉम लैपटॉप्स, फ्रॉम LED, वट एवर,
द डोज इज नॉट मच, बट वो टाइम बहुत है, वो क्रॉनिसिटी है वो, राइट? क्योंकि आप years on years you're just scrolling and scrolling and scrolling, नहीं, और and that can if your worsen it. eyes start watering because of too much exposure to the screen, आंखों से पानी आता है, आंखों में जलन होती है, इचिंग भी होती है रात को, तो इसका मतलब कुछ तो स्किन पे भी असर कर ही रहा होगा अगर आपकी आईज पे कर रहा है. मोस्ट डेफिनेटली. सो दैट इज वाई अगर स्पेशली अगर आपको पिगमेंटेशन की चिंता है तो फिर आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्टिंग चीज़ें यूज़ करनी ही है. तो घर में भी सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा. घर में सनस्क्रीन लगानी ही है, वैसे भी लगानी है, बट नॉट जस्ट फॉर ब्लू लाइट, इन जनरल घर पे भी लगानी है. अगर मैं बोलूंगी तो हो जाएगा ना कि आई वांट टू सेल मोर, सो इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर. नहीं, डेफिनेटली घर पे भी सनस्क्रीन, मतलब घर पे अगर आप इंडोर प्लांट्स रखते हो दैट मीन्स सनलाइट अंदर आ रही है, विच मीन्स सनलाइट आपके स्किन पे भी जा रही है, सो ऑफ कोर्स सनस्क्रीन घर पे भी लगानी है. एंड अभी आजकल इतने अच्छे सनस्क्रीन्स आते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड 5-10 years ago जब वो चिपचिपी वाइट कास्ट वाली आती थी, अब तो काफ़ी अच्छे आते हैं. सो एंड इन ऑल बजट्स आते हैं, सो आई डोंट सी व्हाई पीपल विल नॉट अप्लाई इट. Yes, definitely. So moving to another very interesting question. पेरेंट्स तो खैर बहुत टाइम से ही बोल रहे हैं कि खुद खाते हैं जबकि पेरेंट्स, बट दे ऑलवेज टेल देयर किड्स कि भाई मीठा मत खाओ, शुगर इज़ बैड फॉर स्किन. डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया ऑफ कोर्स पूरा भरा हुआ है कि यू शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ शुगर. सो हाउ बैड शुगर इज़, और है कि नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ. इट इज़ बैड, बट क्या है कि शुगर इज़ नॉट कि शुगर खा लिया पिंपल्स आ जाते हैं, ऐसे नहीं है. शुगर इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट द मेन विलन, द बैकग्राउंड विलन यू कैन से. कि बेसिकली आप जब शुगर खाते हैं तब क्या होता है कि आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है स्किन का, जो बॉडी का होता है, वो बढ़ जाता है. अभी वो बढ़ता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है आपके स्किन में, आपका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इससे पिंपल्स आते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्टली शुगर से डेफिनेटली होता है. अनदर थिंग शुगर जो करता है कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स है आपके स्किन में, जो कोलेजन और इलास्टिन होता है उसके एंड्स पे लग जाते हैं, तो इससे जो इनकी इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है. सो इसमें फिर वापस आपका बैरियर डैमेज हो जाता है और इससे आपकी एजिंग प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाती है. सो ये दो चीज़ों में शुगर कैन वर्सन थिंग्स. अगर आप शुगर, जैसे लोग डिटॉक्स करते हैं, शुगर डिटॉक्सेस, अगर वैसे आप करें इवन फॉर 2 to 4 weeks आपको डिफरेंस दिखेगा, बट अगर आप संडे डिटॉक्स करोगे या ऐसे नहीं होगा. तो क्या है डिटॉक्स? लेट्स ब्रेक इट डाउन. डिटॉक्स बेसिकली सी इन जनरल आपकी बॉडी, आपका लिवर, हाँ, इन जनरल आई थिंक डिटॉक्स इज सच अ बैड वर्ड, क्योंकि लोगों ने इतना उसका फैड बना दिया है, राइट? आपका लिवर वैसे भी डिटॉक्स कर रहा है, यू डोंट नीड टू डू मोर देन दैट. बट अगर आपने शुगर डायल डाउन करी, मॉडरेशन में करी, बिकॉज ऑब्वियसली टू लिव लाइफ विदाउट शुगर इज आई डोंट थिंक वेरी प्रैक्टिकल इन इंडिया. ठीक है, बट अगर आपने एटलीस्ट मॉडरेशन में किया, कम किया, तो आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, राइट? तो इट इज़ लाइक अगर सडनली बैकग्राउंड नॉइज हट गया तो यू कैन हियर ईच अदर बेटर. वैसे ही अगर शुगर कम हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, तो आपकी जो स्किन केयर है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी. तो शुगर इन्फ्लेम कैसे करता है, क्या इन्फ्लेम करता है? जो इन जनरल बॉडी का इन्फ्लेमेशन, स्किन का इन्फ्लेमेशन वो बढ़ाता है. बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, आपके एक्ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. क्या साइंस होते हैं इन्फ्लेमेशन के? रेडनेस हो जाएंगे, आपको छोटे छोटे पिंपल्स आना शुरू हो जाएगा. यू कैन एक्सपीरियंस ड्राइनेस ऑल्सो. अगर आपकी जनरली स्किन ड्राई रहती है तो यू कैन एक्सपीरियंस दैट. एंड शुगर की जो इन्फ्लेमेशन है, इन जनरल इन्फ्लेमेशन से आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर भी बढ़ सकती है. ओके, तो कैसे बंद करनी है शुगर? शुगर तो बहुत सी चीज़ों में होती है. फ्रूट्स भी खाने बंद कर दें, एटलीस्ट प्रोसेस्ड शुगर आप बंद कर सकते हैं. एंड प्रोसेस्ड शुगर इन द सेंस इवन मैदा एंड एवरीथिंग, इफ यू कैन reduce, ideally it will be good. But you have a sweet tooth or you don't have a sweet tooth? I have a sweet, not so much, but mainly for like dark chocolate and stuff, definitely. But तो कहाँ तक जाना है, क्या लिमिट है शुगर बंद करने की? शुगर जितना आप कंट्रोल कर सको उतना अच्छा है, बट ठीक है, हमने जलेबी, लड्डू, ऑफ कोर्स वो तो करना ही है. तो लोग तो जनरली सोचते हैं शुगर बंद करना मतलब मिठाई बंद करना. मिठाइयाँ तो मतलब अब हमें इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टेप 1 है मिठाई, राइट. देन सेकंड इज कि अगर आपकी चाय, कॉफी वगैरह जो है उसमें कितनी चीनी डल रही है. हम अभी स्टेप से चलते हैं. स्टेप 1 हो गया कि आपने लड्डू, मिठाई, जलेबी बंद की. स्टॉप द स्टेप 2 हो गया कि स्टेप 2 विल बी योर, जनरली वो स्टेप 2 में आता है, इंडियंस की स्टेप 2 में आता है. ठीक है, ये उन्होंने ऑलरेडी जब केक ये छोड़ा, लड्डू जलेबी छोड़ा, उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया. अब आप बोल रहे हो सेकंड सैक्रिफाइस करो कि केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स वो भी छोड़ दो.
है ना? अगेन आप ये मॉडरेशन में कर सकते हैं या फिर यू कैन गो टू हेल्दियर Moderation ऑप्शंस, मतलब क्या? राइट? तो अगर आप एक बार लड्डू हफ्ते में छोड़ खा रहे सकते हैं हैं? तो आप ड्राई फ्रूट लड्डू खा सकते हैं। आप अगर केक्स या व्हाटएवर छोड़ रहे हैं तो फिर आप डेट बेस्ड ऑप्शंस ले सकते हैं। अभी वो मंक फ्रूट आ गया है रिसेंट में, यू कैन यूज दैट एज अ स्वीटनर। यू कैन ट्राई टू डू दैट एंड ऑब्वियसली अगर आप रोज 4 लड्डू खा रहे हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट विद हैविंग मे बी 1 लड्डू अ डे, ब्रिंग इट डाउन टू हाफ एंड ब्रिंग इट डाउन टू मे बी ऑल्टरनेट डेज उसके बाद। क्योंकि आप अगर जितने आप जैसे अभी 1 स्टेप की, ठीक है हमने लड्डू छोड़ दिए, हमने मिठाइयाँ छोड़ दी, इतना फास्ट अगर कोई कुछ करने जाएगा binge तो eating वो होगी फिर बाद बिंज में। ईटिंग होनी ही है। सो इट हैज़ टू गो स्टेप वाइज लाइक यू सेड एंड इट हैज़ टू बी अ ग्रेजुअल। जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें आप एकदम 180 करेंगे तो वो उतनी जल्दी रिबाउंड होगा। सो जितना आप ग्रेजुअली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी में करा सकते हैं, बिकॉज मैनी टाइम्स पीपल विल क्विट इट बट देन उनका पार्टनर या फिर उनकी मम्मी या somebody will be like बेटा खा ले करके। सो जितना आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर यू कैन कट डाउन शुगर एज मच एज पॉसिबल। तो स्टेप 1 लड्डू मिठाई छोड़ो, Yes. स्टेप 2 इज केक पेस्ट्रीज बंद करो, ठीक इवन है? दो आई थिंक दैट इज द सेम स्टेप बट नहीं जनरली उसको ना हम लोग, क्योंकि सी इंडियन हाउस होल्ड्स केक्स पेस्ट्रीज इज ओकेजनल, राइट? while the laddu mithai jalebi etc could be on daily basis or maybe not so occasional, आते रहते हैं at least wedding है ना, season में आते तो रहते काफी हैं। रहते हैं। और थर्ड नंबर पे फिर आता है योर बर्गर्स पिज्जाज बिकॉज मैदा बिकॉज इट कार्ब्स आल्सो कंटेन शुगर, तो वो बंद करना है। फिर फोर्थ स्टेज पे जाना है कि चाय कॉफी में भी शुगर बंद करनी है, या कम करनी है एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट कम करनी तो है। जनरली मैंने देखा है लोग जब बात करते हैं कि शुगर आई डोंट टेक शुगर, पीपल थिंक यू हैव डायबिटीज, ये भी है राइट तो नो एंड ऑल्सो पीपल इमीडिएटली आर लाइक डाइट कर रहे हो क्या? पीपल गेट सो सस्पिशियस, डाइट कर रहे हो आप, यू आर बीइंग हेल्दी विदाउट मी। बट नो आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट जितना भी आप कट कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु पुट 2 sachets ऑफ शुगर इन देयर चाय एंड बिकॉज कि इतने जल्दी घुलती नहीं है तो मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, you know, and then they end up I drinking yet all to of meet that. such people Yeah. वैसे। Good. There are. And you know, या फिर कि okay, I'll have one more of my diabetes medicine or I'll take some more units of insulin, but मुझे ये खाना है. There are people who go beyond that as well. So before you get to that stage, आप control कर सकते हो खुद को जितना it is ideal. पता नहीं, मुझे लगता है कि आई थिंक आई want टू स्टडी अ बिट मोर और डीप डाइव इनटू दिस शुगर थिंग। आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ बिकॉज इंडिया में हमारा वेस्टर्न यूपी है, बहुत सारा है, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया है, बहुत शुगर केन पैदा होता है। तो जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है तो वो एक्चुअली आइडियली वहाँ के लोगों को सूट करती है। तो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा मन है इसके बारे में और पढ़ने का। यस सूट होती है, बट डोंट यू फील कि हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी चेंज हो गई या तो हम प्रोसेस शुगर जो बहुत खाते हैं वो बट बहुत अर्लियर नुकसान हमारी करते हैं। हालचाल इतनी होती थी, वी यूज्ड टू हाँ। वर्क, वी यूज्ड टू Sedentary lifestyle राइट? बहुत जो शुगर केन, यू विल सी इवन नाउ शुगर केन जूसेस आर मोर ऑफ अ लाइक यू नो पीपल हु आर हैविंग इट, उनका लाइफस्टाइल ही अलग रहता है। एंड इवन जैसे अभी फार्मर्स वगैरह ले रहे हैं अगर शुगर केन जूस, दे कैन प्रोसेस इट, दे कैन डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज इट वेरी इजीली। हम कहीं से गन्ने का जूस लेंगे फिर पूरे दिन यहाँ बैठे रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज इट एट ऑल, राइट? तो बट डेफिनेटली यू कैन लुक इन टू इट 100%। एंड आजकल यू ऑल्सो हैव दोज कंटिन्यूस शुगर मॉनिटरिंग वाले पैचेस, right? So even they are very helpful कि आप जब खाते हैं you can see within like a few like 20 minutes or so you can see a sugar spike, you can see what is actually spiking your sugar a lot, or if you take salads and stuff actually it does not spike. आई थिंक थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए आई Most ऑलवेज important. टॉक अबाउट द होलिस्टिक। एक ना हमेशा ये 360 डिग्री देखना चाहिए आपको अपने, आप इतना सैक्रिफाइस मत करो, शुगर के साथ भी खा सकते हो। Exactly. वही है कि उसको मॉडरेशन हाँ, में ही करना है, but वरना वो exercise करो। रिबाउंड हो जाता है। Yes, Exactly. yes. You can eat what you want if you are exercising that Yeah, much and you are actually digesting that. Yeah. So do you think sugar also causes hormonal disruption? Yeah, so sugar will affect your skin, obviously. It affects your hormones because of insulin, obviously. Okay, and it affects your gut as well. So you can experience bloating वगैरह भी जो लोगों को इतनी होती है, that is all because of sugar. So ये तीनों like these 3 axes, gut, skin axis जैसे है, it really makes a difference and it does affect your hormones. And जितना of course फिर then indirectly there are a lot of other things कि जैसे शुगर बहुत खा रहे हो या फिर आपकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, in general if you have weight gain, you have increased insulin growth factor जो है,
देन यू हैव अदर स्किन कंडीशंस आल्सो लाइक अकैंथोसिस nigricans, राइट, जो यहाँ पे लोगों को डार्कनेस हो जाती है ऑन द नेक, ऑन द अंडर आर्म्स, ऑन द ग्रॉइन, all of that also increases with it. Right. That's also insulin resistance only. Yes. So in Fixerma we have a very interesting patented product for that. पर वही है, उसके लिए भी ना पेशेंस चाहिए. आपको उसको 2-3 Right. महीने कंटिन्यूसली लगाना है तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा. क्योंकि अगर आपने उसको रियलाइज ही 10-15 साल बाद किया कि मुझे ये सिचुएशन है मेरी. But and that is also आप 2-3 महीने लगाएंगे with proper diet control. यस. ये सब कुछ एक्चुअली ना, एक्ने भी है. अगर आपने कोई एक्ने केयर यूज़ कर रहे हैं तो एक्ने तो वापस आ सकता है. Of course. ये थोड़ी ना 100% आपका हमेशा के लिए ठीक हो गया. Of course, I have so many patients who say कि कि मैं तो 2-3 डर्मेट्स के पास हुआ ही, ठीक हो जाता है पर वापस आ जाता है. तो देन आई टेल देम कि क्या आपको लगता है कि आप बोलेंगे मुझे कि मैं तो 2-3 जिम हुआ ही, मेरा वजन कम हो जाता है पर वापस आ जाता है, ऐसे तो कभी बोलते नहीं हैं आप, राइट. दैट इज़ बिकॉज वो लाइफस्टाइल ही चेंज करनी है आपको पूरी. सो जस्ट लाइक विथ वेट लॉस होता है कि इट कैन फ्लक्चुएट अ लॉट इफ अगर आप अपनी टेक केयर नहीं कर रहे हो. तो वैसे ही होता है स्किन केयर के साथ कि अगर आप नहीं देखभाल कर रहे हो तो पिंपल्स आने ही है वापस. तो मेरे पास बहुत सारे टीनेजर के पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि इतना एक्ने हो रहा है, क्या करें, ठीक ही नहीं हो रहा है, इतने डॉक्टर्स को दिखाया. तो फिर आराम से बैठ के बात करनी पड़ती है. थोड़ा इट्स अबाउट थोड़ा मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करो, कितना स्ट्रेस है बच्चों को. बट उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि आप क्या खा रहे हो. मैं तो फिर उनको अब मुझे कन्विंस करना पड़ता है कि सिर्फ 3 महीने की बात है, 3 महीने करके देखो. एक्सरसाइज लाओ अपनी डेली रूटीन में. शुगर ऑफ कोर्स बंद करो. तो मैं उनको शुगर नहीं बोलती हूँ, बट ऐसे जंक बंद कर दो. 3 महीने के लिए मैंने कहा कर दो. थोड़ा सा लगेगा, स्किन देखो अच्छी करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा. And in kids वो 3 months are also मतलब उनको जब रिजल्ट दिखता है ना, सॉरी वो जंक का भी इफेक्ट काफी जल्दी से दिख जाता है बच्चों बहुत जल्दी दिखता है. जंक लेवल इज हाई, बट आल्सो इन स्कूल उनकी भागदौड़ इतनी हो जाती है कि नॉर्मल थिंग्स दे कैन वेरी इजीली डाइजेस्ट. राइट. एब्सोल्युटली एग्री ऑन दैट. तो उनको अगर बोलो कि 3 महीने के लिए ये जंक बंद कर दो, और जब उनको दिखती है कि स्किन साफ होने लगी है तो फिर वो कंटिन्यू भी करते हैं. राइट. तो मुझे बोलना पड़ता है कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, बाहर निकलो घर के. और क्योंकि सिर्फ फिक्सरमा का सैलिज़ैप लगाने से नहीं ठीक होगा. राइट. तो टॉपिकल है वो, आपको इंटरनल भी ठीक करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो. इंटरनल जब तक ठीक नहीं होगा वो नहीं हो सकता है. इनफैक्ट अगेन गोइंग बैक टू निग्रिफिक्स, आई हैड अ पेशेंट हु वाज 8 or 9 years old, okay, who had very bad acanthosis because her weight for her age was 40 kgs plus. Which was quite high for like उसका मतलब if you see her BMI and everything it's much higher. तो she was not able to like keep up with her friends also. भाग दौड़ वगैरह के games में, hide and seek में, everything she was not able to keep up. So finally like I had to sit her mom down and say कि आप मत खिलाओ इसको ये सब, आप क्या कर रहे हो. तो उसका था कि वो मानती नहीं है, वो मंगवा लेती है. Kids these days Blinkit वगैरह से very easily they will order. And so then finally उसको भी बिठाया मैंने. I had to, just like how you had to, I counseled her for at least half an hour, and then finally she agreed, and now ठीक है, now her weight is manageable and her pigmentation has gone down also. But at such a young age, because I said कि आप 8-9 years पे ही आपको इतना सब अगर हो रहा है, you will be at a risk of all these other hormonal imbalances later in the future. You'll be at a risk for PCOS also आगे जाके. So luckily she turned it around. तो it might मतलब हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगे. जनरली लोग बोलते हैं कि आप शेम कर रहे हो, बॉडी शेम कर रहे हो, पर बॉडी शेमिंग की बात नहीं है. वेट गेन एक्चुअली पूरे पैकेज के साथ आता है. वो बहुत सारी स्कीम लेके आता है. तो 1+4, 1+5 की स्कीम है वेट गेन के साथ. आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एक्नेथोसिस निग्रिकन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि होता है कालापन ऑन योर नेक, एंड बीपी हाई हो जाएगा आपका, कोलेस्ट्रॉल है, उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस इतना हो जाएगा बॉडी में, PCS PCOD तो उसके साथ आ ही जाता है. तो दैट्स वाई वी ऑलवेज सजेस्ट कि वेट कंट्रोल करो. पर अगर आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है उस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है तो इट्स ओके, देन उसमें क्या ही कर सकते हैं, राइट. बट देन अगर जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल एंड यू आर लेजी एंड यू से कि मुझे एक्सेप्ट करो द वे आई एम, मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छी बात है और हमें इसको बहुत प्रमोट करना चाहिए. नहीं, आई जस्ट थिंक कि अगर आपको एक्चुअल मेडिकल इश्यूज आ रहा है बिकॉज ऑफ योर वेट, डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी मैनेज्ड. एंड मतलब आई ऑल्सो
genuinely believe कि people who are in that category of weight, they know it, you know, उनको भी पता है, but I just feel कि ठीक है, body positivity movement is more because they are tired of hearing people say it. हाँ कि you know करो करो करो, they're like just accept it, but I really do believe, and I know so many people who are you know, they do actively try to do things in their own way to Yeah. sort of lose weight, so ठीक है, whatever. और वो भी है, सबकी विल पावर सेम नहीं होती है, यू Exactly. नीड अ क्रेजी विल पावर. और मुझे भी ये भी Really. लगता है कि वंस यू क्रॉस अ लिमिट ऑफ गेनिंग वेट, फिर वापस लौटना बहुत ईजी नहीं होता, बिकॉज इवन इफ यू हैव लॉस्ट 10 kgs इट्स नॉट विजिबल. It's not visible. तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता, आपने तो इतनी मेहनत की है लेकिन कोई Right, कॉम्प्लीमेंट नहीं exactly, करता. exactly. तो And जैसे आपका एज भी बढ़ते जाता है, that also becomes very challenging to lose. Yes, That yes. that 10 kgs also takes a lot out of you. यस यस. बट आई थिंक जैसे यू नो बिजनेस है, आप हमेशा उसका एक सक्सेस देखते हैं कि आपने ये कर लिया, लेकिन सबके पीछे एक जर्नी होती है. Exactly. तो जो लोग आपको फिट स्लिम सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खा रहे हैं पी रहे हैं पर वो फिट हैं, ऐसा नहीं है. उसके पीछे वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं. Definitely, Yeah. definitely. मतलब I've seen people who will, मतलब in a very good thing, you know, if they are eating cake, they'll eat cake. But then दूसरे दिन वो 40 minutes extra workout करेंगे along with their regular workout, and that takes a lot of discipline. और वो discipline easily नहीं आती. So I recently was talking to a friend whose a German friend was visiting her. तो she was saying कि जैसे हम लोगों की इंडियंस की हैबिट है, जनरली वी गो टू जिम, और जो भी हमें एक्सरसाइज करनी होती है मॉर्निंग में कर लेते हैं, और नहीं तो ऑफिस के बाद आके करते हैं. तो वो कह रही थी कि वो कभी भी करती है, पर वो करती है रोज़. Exactly. अगर उसको रन करना है तो वो रन करती ही है, चाहे बारिश हो रही हो, बहुत तेज़ धूप हो, बहुत ठंड हो, उनको करना ही है. तो आई वॉज टॉकिंग टू माई नीस ऑल्सो, तो शी वॉज ऑल्सो टेलिंग मी दैट इन डबलिन इफ इट इज स्नोइंग पीपल रन. People run, yeah. उनको रन करना है तो रन करना है, और हमारे पास बहुत से एक्सक्यूज़ रहते हैं, वेदर इतना ख़राब है, हमारे पेरेंट्स ही नहीं जाने देंगे एक्चुअली. नहीं जाने देते. That's very true. Even when I was doing my externship, I would say rather, in New York in 2014, 15 something. So I had never seen इतना snow. You know, like it was minus 18 degrees. और उनका जो सेंट्रल पार्क है वहाँ पे, it was frozen. It was fully frozen. And like I am like, मैं खुद को मैनेज कर पा रही हूँ in like my 4 layers and my muffler and my scarf में. कैसे तो मेरे you know, from where I was staying to the hospital I was going, and people are running. मेरे को समझ ही नहीं आता था ये कि, but it is a part of their lifestyle वहाँ पे. It is not कि क्या आप Yes. वर्कआउट करते हो, it is आप क्या वर्कआउट करते हो, या फिर when do you work out, how do you work out, what do you do. It is more about that. It is not about अच्छा आप वर्कआउट भी कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो. यहाँ पे it's somehow seen as a negative. हाँ हाँ. But that और is वर्कआउट changing. का मतलब अभी मैंने एक बार एक अक्षय कुमार का वो देखा था, पॉडकास्ट था, उसमें उसने बोला कि कोई जिम नहीं चाहिए आपको, कोई वर्कआउट का सामान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. अगर आपका एक छोटा सा कमरा है ना, उसमें आप एक छोटी दरी बिछा कर भी बहुत सारी फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं. Exactly. And तो body weight excuse is तो है very ही नहीं. difficult to do हाँ. also. It is actually difficult body weight यस, तो exercise. कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. काम तो आप एक्सरसाइज तो कहीं भी कर सकते हो, थोड़ा विल पावर और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. सो डॉक्टर, कम गोइंग बैक टू पोल्यूशन एंड बैड लाइफस्टाइल, आपको लगता है कि जो अर्ली ग्रेइंग होती है बालों में, बाल सफ़ेद हो जाते हैं बहुत यंग बच्चों के, तो क्यों होता है ऐसा? So basically, see, graying का जो है, you have age-related graying, obviously, हाँ. जो सबको पता है, which happens with our old age, okay, and then you have stress-related graying, right? Now, stress-related graying का main, you can say the starting point is ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है पोल्यूशन से, होती है यूवी एक्सपोजर से, सो सन एक्सपोजर से होती है, एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेस होती है. सो ये जो बच्चे हैं, मैनी टाइम्स दे माइट बी हैविंग अ हार्ड टाइम घर पे या स्कूल में या समथिंग लाइक दैट, विच कुड हैव बीन अ ट्रिगर फॉर इट. ठीक है. और फिर जो होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड इन्फ्लेमेशन से मैनी टाइम्स जब आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली वो जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं आपके बॉडी के, लाइक वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टफ, वो ज़्यादा बढ़ जाता है. तो आपकी जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग, मतलब मेलानोसाइट सेल जो होती है बालों में, जिसकी वजह से आपका ब्लैक कलर आता है, वो हट जाती है वहाँ से. ठीक है. तो अगर ये आपका फॉलिकुलर बल्ब है, यहाँ पे सारे आपके मेलानोसाइट्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए, वो हट गए. ठीक है. तो वो ही नहीं बचे तो कहाँ से बनेगा पिगमेंट, राइट? तो इसलिए आपका ग्रेइंग दिख जाता है इन अर्ली पेशेंट्स, जैसे बच्चे हो गए या फिर अर्ली 20s हो गए, उनको दिख जाता है. या लेट्स सो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी आपका वाइट हेयर हो सकता है, राइट? अभी वेदर दैट इज वर्क, घर,
जो भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली फूड ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस, राइट, क्योंकि आपका जो ये पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल है, इट विल ऑल्सो नीड प्रोटीन. तो एज यू नो इंडियन डाइट्स में प्रोटीन नॉट इन वेरी हाई क्वान्टिटीज, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर आपकी डाइट भी ठीक हो जाए, स्ट्रेस, एंड दैट इज़ इनफ टू सी एन इम्प्रूवमेंट. तो जो आजकल आते हैं एंटी ग्रेइंग इंग्रेडिएंट्स, राइट, तो वो जो है अगर आपकी एज रिलेटेड है ग्रेइंग, तो उसमें जो है आपके जो मेलानोसाइट्स है, पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है, जो ये कालापन दे रहा है, वो ऑलरेडी नहीं है, वो चले गए हैं. तो आप कितना भी सीरम लगा लो, उससे नहीं फर्क पड़ना. ठीक है, इन योर 50s यू आर पुटिंग नॉट, हाँ, मतलब एज रिलेटेड ग्रेइंग को नहीं ठीक कुछ नहीं करेगा, कर सकता, बट पर अगर डेफिनेटली स्ट्रेस रिलेटेड है तो स्ट्रेस रिलेटेड में इट विल मेक अ डिफरेंस, बट इट विल डिपेंड कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी है. जैसे पेप्टाइड्स अगर है, इट विल हेल्प, ओके, बट इफ इट इज डन विथ अनदर, जैसे माइक्रो नीडलिंग या कुछ, जैसे अगर इन क्लिनिक करे, इट विल बी बेटर, क्योंकि उसका पेनेट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो क्या ये रिलैप्स हो सकता है जब वो मेडिसिन बंद कर देंगे ग्रेइंग वाले? तो मेडिसिन नहीं, एक बार दे आर, मेडिसिन से ज़्यादा आपकी जो अगर स्ट्रेस फैक्टर्स आपके कम हो गए तो इट विल इम्प्रूव. तो आपने शायद सुना भी होगा लोगों के, जैसे घर में कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो गए, देयर हेयर टर्न्स वाइट, एंड व्हेन इट स्टेबलाइजेस अगेन, एक्चुअली इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग ब्लैक पिगमेंट अगेन. तो इट डज, तो क्योंकि वो स्ट्रेस फैक्टर आपकी लाइफ से चला गया है. और अगर जेनेटिक है आपके, मतलब पेरेंट्स को भी हुआ इन था, जेनेटिक केसेस भी बहुत बहुत कम चांसेस है ऑफ एनी सक्सेस विद दीज प्रोडक्ट्स, बहुत कम चांसेस है. तब मुश्किल है, राइट. और क्या ये इम्यूनिटी डिसऑर्डर से भी होता है ग्रेइंग? इम्यूनिटी डिसऑर्डर, जैसे अगर कोई एंटीबॉडीज बन रहे हैं अगेंस्ट योर पिगमेंटरी सेल्स, उसमें हो सकता है डेफिनेटली, एंड देन फिर उसकी ट्रीटमेंट से इट विल इम्प्रूव. राइट. आई थिंक अभी थोड़ा हम लोग को, इंडियंस को, ग्रेइंग को भी एम्ब्रेस करना बाकी है, क्योंकि बाहर तो लोगों ने कलर कराना शुरू कर दिया है. ग्रे कलर इज वेरी इन. यस, या एंड एक्चुअली डॉक्टर्स में ग्रेइंग इज ओके, बिकॉज जितना हमारे ग्रे बाल हो जाते हैं, लोग लगता है ये तो सीनियर डॉक्टर है, ये तो बड़े डॉक्टर है, सो फॉर अस इट्स एक्चुअली फाइन. सो आई थिंक देन यू शुड हैव अ सॉल्ट एंड पेपर इफेक्ट. I have too much for my liking. और टेल मी, ये बायोटिन कितना फर्क लाता है बालों के लिए? सी ऐसे है कि सब लोग बायोटिन खा रहे हैं, लगा रहे हैं, इंजेक्ट भी कर रहे हैं, तो अच्छा क्या हो जाएगा बायोटिन से? बायोटिन क्या है कि देखो, बायोटिन डिफिशिएंसी अगर है, आपको हेयर फॉल होगा, सिंपल, ठीक है, बट एक्चुअल बायोटिन डिफिशिएंसी बहुत कम लोगों को है. ठीक है, तो बायोटिन लेने से इट विल नॉट हेल्प एज मच एज टेकिंग कोलाजन हो गया फॉर एग्जाम्पल, दैट कुड हेल्प. प्रोटीन हो गया, पेप्टाइड्स हो गए, दैट विल हेल्प. बायोटिन अगर आप डिफिशिएंट है, 100% टेकिंग बायोटिन विल ऑब्वियसली हेल्प, but it's very unlikely that people are deficient in it. So a low dose of biotin जो normal hair fall supplements में होता है, it's okay, but आप ऐसे कुछ भी random amounts of biotin अगर खा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, उनको तो बहुत सारे बाल आ जाएंगे. जितना बायोटिन खाएंगे उतने बाल निकलेंगे. I wish ऐसे correlation होता, but ऐसे नहीं है. डॉक्टर, बहुत सारे रिलीजियस उसमें लोग हेड कवर करके रखते हैं, तो हेड कवर करने से भी तो थोड़ा स्कैल्प बिल्डअप होता है, तो उनको कैसे और ध्यान रखना है बालों का? सो स्कैल्प बिल्डअप होता है, येस, एंड इफ दीज आर पीपल जिनको ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है, लेट्स सपोज, तो जो हेयर ग्रोथ सीरम्स है उनसे भी बिल्डअप आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो दे जस्ट हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर वॉशेस, दैट्स इट. इट्स वेरी सिंपल. दे कैन यूज अ क्लैरिफाइंग शैम्पू ऑल्सो वंस इन अ वीक, उनको चाहे तो बस इतना ही करना है. बट ऑफकोर्स अगर उनको नॉट जस्ट स्कैल्प बिल्डअप बट डैंड्रफ भी बढ़ रहा है, विच वी सी इन लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट रिलीजियस यूजेज बट ऑल्सो बाइकर्स, हेलमेट वगैरह लगाते हैं, राइट. तो वी सी अ लॉट ऑफ इंक्रीज बिल्डअप, डैंड्रफ, इवन सेबोरिक डर्मेटाइटिस इनमें. तो बस दे हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर वॉशेस, दे हैव टू ट्राई टू यूज अ मेडिकेटेड शैम्पू अगर हेल्प नहीं हो रहा है, क्लैरिफाइंग शैम्पू, इससे सही हो जाता है. बट अनदर थिंग दैट हैपन्स मेनी टाइम्स इज पीपल आर वेयरिंग स्कार्व्स, जो यहाँ पे ऐसे पीछे हो जाता है, राइट. तो उसकी वजह से यहाँ उनको ट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है. मतलब इतना प्रेशर रहता है इन दिस एरिया कि यहाँ के बाल पीछे पीछे होके फाइनली यहाँ की हेयर फॉलिकल बंद हो जाती है बाल बनाना. तो यहाँ से उनको थोड़ा सा ऐसा वो गंजापन सॉर्ट ऑफ हो जाता है. सो इसके लिए बस लूज स्कार्व्स पहन सकते हैं एंड अप्लाई सीरम्स ऑन दैट साइड, हेयर ग्रोथ सीरम्स. तो हम लोगों ने तो उसके लिए एक स्पेशली शैम्पू बनाया, मैंने देखा था मलेशिया एंड दुबई, बहुत अच्छा बिकता भी है वहाँ पे. तो वी ऑल्सो मेड, बट इट्स अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, क्राउन गार्ड शैम्पू, सो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर क्राउन.
It's so very very important. very important. So we have just launched it. Let's see. तो हमने डॉक्टर बहुत सारा डिस्कशन कर लिया शुगर के बारे में भी. तो डू यू थिंक गट हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Yes, because gut health will mirror आपकी skin. तभी तो 110%. मैंने एक बार बोला भी था एक पॉडकास्ट में कि गट इज योर सेकंड ब्रेन. It is. It is because and actually because of the amount of nerve endings that are there, it is actually called that. So how to balance that? How to balance के लिए बहुत first you have to complicated know लगता है कि मुझे ये it gut is a balance complex issue क्योंकि you have to know कि imbalance कहाँ आ रहा है इसमें, right? Like balance मतलब what? Is it imbalanced because you're constipated? Is it imbalanced because you're going too often? Is it imbalanced because of bloating or what? मतलब you know या digestion ठीक से नहीं हो रहा है. Like what is it exactly that is causing the imbalance? And accordingly जैसे we have gut microbiome also जो gut friendly bacteria है जो आपका digestion में help करता है. So we have probiotics, prebiotics which will help with that as well. And in general not taking complex carbohydrates या फिर कोई complex food items that can also worsen it. So you have to ensure that your diet is good for that. Fiber, plenty of water because especially abhi winter mein you will see people's water intake goes down. Very less, yes. Okay, fruits because fruits apart from getting maybe that little bit of sugar in which will be beneficial, लोगों का वो थोड़ा craving कम हो जाएगा, but fruit से भी fiber आ जाएंगे, antioxidants आ जाएंगे, especially seasonal fruits like अभी तो berries are in season, so that will also help. And in general if you still feel like it is not helping, you can go for probiotics or obviously consult a gastroenterologist will be ideal. मतलब गट को बैलेंस करना और उसके सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड है, आपको ब्लोटिंग है या bloating फिर हो रही मतलब है, either way gas अगर की आप feeling हो रही the है, number of times आपको जाना पड़ रहा है is हाँ. either too less or too much, दोनों ठीक then- नहीं है. right exactly. And या फिर आपको ब्लोटिंग हो रही है, कुछ भी खा रहे हैं तो आपको डकारें आ रही है या फिर गैस बन रहा है, is हिकअप्स भी होने लगे हैं बहुत little लोगों को, bit मैंने yeah. देखा है. Yes. राइट, Especially spicy खाने के बाद I've seen that happen लोगों Yeah, को बहुत yeah. ज़्यादा. राइट. There is one very burning question कि ये एजिंग, थैंक्स टू सोशल मीडिया, उन्होंने एजिंग को भी बहुत जल्दी से ले आए पिक्चर में कि यू स्टार्ट एजिंग व्हेन यू टर्न 25 और द एजिंग स्टार्ट्स एज अर्ली एज 20. इवन पीपल आर टॉकिंग अबाउट. डू यू थिंक ये सही है? ट्रू, इज इट ट्रू? It is true in the sense कि आपका जो collagen levels है they do start dipping. ठीक है, पर कितनी तो जल्दी? उसको इन योर 20s, तो अगर आपको उसको मैनेज करना है तो लाइक एंड इफ यू आर समबडी हु इज वरिड अबाउट इट then definitely starting in, I'm not saying retinoids, at least like a vitamin C which will help with collagen will help. ठीक है, ताकि your habits in your 20s will define आप 40s में कैसे दिख रहे हो या आप 50s में कैसे दिख रहे हो. तो बेसिक सनस्क्रीन बिकॉज सन रेज विल ऑल्सो ब्रेक डाउन कॉलेजन, तो बेसिक एक सनस्क्रीन एक विटामिन सी लगा के निकाल सकते हैं लोग, you know, and then they can start their peptides and retinoids and everything 30s 35 में when they feel the need for it. बट इतने में भी लोगों का हो सकता है, एंड दिस इज अगेन फॉर पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट एजिंग. इफ यू आर समबडी हु Doesn't either care. has who is not that bothered, it's okay if you don't want to do it. There is no nobody's going to shame you for it, but only thing is कि sunscreen लगानी हाँ, है बट बस. मुझे लगता है कि इसमें शेमिंग की कोई बात नहीं है, बट एक बेसिक स्किन केयर रूटीन तो कोई भी किसी भी आजकल 15 everybody हाँ has it. 14-15 साल से आप शुरू कर सकते हो Everybody कि has. क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड अ सनस्क्रीन, यू नो, CSM, CMS जैसे भी करना है, पहले लगा लो, बाद में लगा लो, बट लगाओ. Exactly. And luckily nowadays लोगों का है ये awareness, and even a lot of men are doing really good skincare. नहीं, बट So I'm मानसी, quite happy. अभी हम लोग बात कर रहे हैं जेनजी की, जो ऑलरेडी बहुत अवेयर है, इनफैक्ट ओवर लेयरिंग कर रहा है, ओवर बाइंग कर रहा है, ओवर इंडल्ज है. मुझे बताओ, पीपल हु आर 40+ और उनको लगता है यार मेरी तो ट्रेन निकल गई, मैंने तो कुछ लगाया ही नहीं, अब क्या होगा, अब तो मेरी स्किन खराब हो चुकी है. ऐसा है कि दे कैन स्टिल टेक केयर ऑफ इट? नहीं, of course it's never too late. It is never too late. They can still start depending on their skin type. They can choose या तो एक कोई creamy cleanser हो जाए या फिर कोई gel based cleanser if their skin is more oily. Generally आपकी एज जैसे बढ़ते रहती है, your skin tends to get drier. Okay, तो creamy cleanser is fine. एक विटामिन सी हो गया, सुबह सनस्क्रीन लगा ली, रात को एक रेटिनॉइड क्रीम लगा ली, मॉइस्चराइजर लगा दिया, खत्म. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो मैंने रेटिनॉइड के साथ भी देखा है, जनरली वुमेन देयर स्किन बिकम्स वेरी सेंसिटिव एंड इची. तो मुझे लगता है रेटिनॉल या रेटिनॉइड जो भी आप उसकी स्टेज यूज़ कर रहे हो,
एक 2 दिन छोड़ के भी आप लगा सकते यस हो या मिक्स कर सकते स्किन हो साइक्लिंग एग्जैक्टली सो दैट इज स्किन साइक्लिंग जहाँ पे आप रेटिनॉल एक दिन लगा रहे हो, दूसरे दिन सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, एक रेस्ट डे ले रहे हैं बीच में, थर्ड डे you're putting a different active. That is very possible and it is good. And retinol anyway as a beginner who people जो 40s में शुरू कर रहे हैं, they should not apply it every day, या फिर if they are applying it every day आजकल retinol based moisturizers भी आते So हैं, I'm they can use shocked that. to see some dermats, not more of Indian dermats, but वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं और वो ट्रेटेनॉइन सजेस्ट कर रहे हैं लगाने के लिए फेस के ऊपर, पूरे But फेस ये के Indian, ऊपर. like you said, it's not Indian dermats because it may be people in the US I mean, who are tretinoin doing is a it 100% prescription because product. tretinoin वहाँ पे without prescription मिलेगा नहीं, right? यहाँ पे मिल जाएगा. There is a very big difference इसमें. So you'll never, I don't think you'll find Indian dermatologists at least suggesting tretinoin ऐसे randomly. और मुझे याद है बिकॉज I've also been a acne sufferer, you know, acne prone skin थी मेरी, तो tretinoin was allowed to apply only on the affected area and on prescription. Yes. और अब मैं देखती हूँ कि वो जो डॉक्टर्स का एक स्टाइल है ना ऐसे ऐसे करने का और स्क्रॉल पास करने का और बताने का, उसमें ट्रेटेनॉइन वो बार बार सजेस्ट कर रहे हैं लगाने के लिए. एंड मुझे लगता है और थोड़ा सा जिनके पास अवेयरनेस नहीं है वो तो उसको अपने मुंह पे पूरा थोपना शुरू कर देंगे, स्मॉदर कर लेंगे ट्रेटेनॉइन से. they are actually ये हो रहा है. उसके I क्या have साइड patients इफेक्ट्स हैं, जो how bad आते it हैं, is. हाँ तो पेशेंट्स आते हैं उसको मॉइस्चराइजर की तरह लगाने के बाद, Oh राइट, God. will apply a lot of it. फिर भी if people who are seeing it online generally थोड़ी बहुत भी रिसर्च कर ले तो उनको पता चल जाता है कि पी साइज अमाउंट ही लगाना होता है उसको, और जनरली ट्रेटेनॉइन से नहीं स्टार्ट करना चाहिए इफ वो यू तो आर अ बिगिनर, बिकॉज इट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड्स. ठीक है, जैसे अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हो तो इट बिकम्स रेटिनॉल इन योर स्किन एंड देन इट एक्ट्स. तो अगर आप डायरेक्टली रेटिनॉल लगा रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है. पी साइज अमाउंट लगाना है उसको, एंड उसको आप फिर as you said, you know, start with once a week, start with then increase it to twice a week, alternate nights. बीच के दिन आपको मॉइस्चराइजर लगाना है. इफ़ यू फील दैट रेटिनॉइन इज टू स्ट्रॉन्ग, आप इसको शॉर्ट कॉन्टैक्ट के लिए लगा लीजिए, मतलब हाफ एन आवर के लिए लगा के यू कैन वॉश इट ऑफ, or you can layer it. So face wash, moisturizer, tretinoin, moisturizer. So like that is that retinoid sandwich. You can do that. That will also help. And I have a lot of patients जिन्होंने ऐसे किया है, and the signs see typically you will see purging, especially अगर acne prone skin है. तो जैसे tretinoin जो करता है आपका skin cell turnover, जो आपके skin के cells है उनको जल्दी जल्दी निकाल देता है. तो नीचे के जो skin cells है जहाँ पे शायद क्लॉग हो गए हो पोर्स, जो शायद आपके सरफेस पे आने को 4 to 6 weeks लग जाते हैं, वो सब जल्दी जल्दी आ जाते हैं, एंड यू विल सी अ फेस फुल ऑफ एक्ने. ओके, सो दैट इज नॉर्मल ऑल्सो, लाइक यू कैन मूव पास्ट इट. वी डू टेल पेशेंट्स टू वॉच आउट फॉर इट कि अगर ऐसे पर्जिंग हुआ तो डोंट पैनिक, इट हैपन्स. बट अगर आप ये कर रहे हैं विदाउट एनी सुपरविजन, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ पैनिक इन पेशेंट्स, बिकॉज उनको लग रहा है ट्रेटिनॉइन लगा के ग्लास स्किन मिल जाएगी और ये सारे मुँह से आ गए हैं, राइट. सो they'll see purging, they'll see their skin becoming red, they'll see their skin ekdam flaking, especially like under the eyes, on the corners of nose, corners of lips, because these are very sensitive areas. तो यहाँ पे flaking हो जाएगी, dry skin हो जाएगी, tight लगने लगेगा, जो मतलब face wash या फिर पानी भी लगाए skin पे तो जलन होती है. ये सब होता है, and at that point if it gets too much, the only thing you can do, especially अगर आपका barrier damage हो रहा है, you have to stop it. There is no other way. You have to stop it, you have to seek help, and then restart it प्रॉपरली, ताकि आपकी स्किन बैरियर, इसमें उसको थोड़ी बलि पर चढ़ाना है हमें स्किन बैरियर को, जस्ट टू स्टार्ट अ रेटिनॉइन, सो दैट यू कैन रीस्टार्ट इट सेफली. क्योंकि रेटिनॉल बड़ा बज़वर्ड बना हुआ, सबको लग रहा है इट्स अ होली ग्रेल फॉर एंटी एजिंग. It is a holy grail for anti-aging. It is, मतलब retinol is like, you know, it can do it all. आपके pimples है या फिर आपका pigmentation है, आपको wrinkles है, whatever it is, it does help. But because it is so strong, you have to be more careful about how you apply it. आप ऐसे ही थोड़ी लगा लोगे उसको. करेक्ट. जो भी हमारा टीजी है स्किन केयर का राइट नाउ, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसकी अवेयरनेस तो कमाल की है. मतलब उसको बहुत सारा कुछ पता है, जो आपको भी कभी कभी लगता होगा शायद अरे मुझे तो पता ही नहीं है. आप इतने सारा नॉलेज कहाँ से लेके आए हो? MBBS और MD तो मैंने किया था. सो हाउ डू यू टैकल दैट, एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी द डूज एंड डोंट्स? क्या इंग्रेडिएंट लगाने चाहिए खुद और क्या नहीं लगाना चाहिए?
सो इंग्रेडिएंट्स जो आप खुद लगा सकते हो जनरली आर ऑलरेडी बीइंग मार्केटेड बाय स्किन केयर कंपनीज, राइट, जो सेफली ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप लगा सकते हो, जैसे सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, रेटिनॉल, ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड तक चल जाएगा, right? Ceramides, hyaluronic acid, even some like low percentages of glycolic acid, other exfoliating acids. This is all fine. You can do this on your own. ठीक है, and as long as you are still following face wash, moisturizer, sunscreen regularly, आप ये use कर सकते हैं. It becomes a problem when people start using other ingredients like tretinoin, हो गया, लाइक हाइड्रोक्विनोन. सो हाइड्रोक्विनोन इज जो आपका पिगमेंटेशन होता है, मेलाज्मा स्पेशली, जिसको झाइयाँ बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अंडर डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरविजन रहे, ताकि उसको हम टेपर ऑफ सही करे, राइट? क्योंकि अगर उसको बहुत ज़्यादा लगाए, फॉर जो लोग आते हैं दे अप्लाई फॉर 4 years 5 years. क्या होता है टेपरिंग ऑफ? होता है कि उसको यूजिंग इट फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन उसका ग्रेजुअली स्टॉप करना, धीरे करके, हाँ, ताकि आपकी स्किन भी रिबाउंड ना करे, या फिर उसको स्टॉप करके स्विचिंग टू अ डिफरेंट क्रीम जो आपकी स्किन को फिर डैमेज नहीं करेगा, विच विल स्टिल मेंटेन दोज गुड इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्विनोन, राइट? तो हाइड्रोक्विनोन जो करता है वो पिगमेंटेशन पूरी तरह से, इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिपिगमेंटिंग एजेंट्स वी हैव, राइट? तो हाइड्रोक्विनोन लगा के आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आती है. बट क्या होता है, लोगों को इतनी इंप्रूवमेंट आती है वो बंद नहीं करते उसे, वो लगाना है, उन्हें लगता है अब गोरे होना शुरू हो गए, और फिर होता है शुरू एग्जैक्टली और फिर होता है शुरू एक्सोजीनस ओक्रोनोसिस. इसमें होता है आपको रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन, मतलब इसका फिर आपको सीधा अब लेज़र ही करना पड़ेगा, और लेज़र से भी आपका वो रिड्यूस होगा, शायद पूरी तरह से नहीं जाएगा, ऑल बिकॉज आपने हाइड्रोक्विनोन ज़्यादा लगा लिया. मुझे लगता है हाइड्रोक्विनोन के बदले स्टेरॉइड्स जो इतने मिल रहे हैं, that is exactly, that was the third ingredient. बहुत ही खतरनाक So there is a मतलब a very popular combination with steroids, hydroquinone and tretinoin. मतलब the 3 things that you should not put on your skin का combination. Very potent, very effective when used correctly under a dermatologist supervision. ठीक है, उसको आपको रिजल्ट्स वगैरह सब अच्छे मिलेंगे, बट उसको आपने अगर खुद से लगाया, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाएगी. तो मैंने एक ड्रग इंस्पेक्टर से मेरी बात हो रही थी, वॉज अ वेरी सीनियर गाय. ही वॉज टेलिंग कि हम लोग ये बार बार रेड करते हैं और ये प्रोडक्ट्स को बंद करवाते हैं. ये बहुत मिलते हैं Tier 3 Tier 2 सिटीज़ में, केमिस्ट से लोग डायरेक्टली खरीदते हैं, और ये लोग बड़े इंटरेस्टिंग नाम भी रखते हैं, जैसे सुंदरी, गोरी, इस टाइप के नाम रखते हैं, और ये वो बंद करते हैं, वो फिर से आ जाते हैं, और बहुत लोग खरीदते हैं, और उससे इमीडिएट उनको क्लीन, मतलब आप फेस वाइट होगा, नेक पे डिफरेंट, क्यों सिर्फ फेस पे लगाते हैं, राइट? बट इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस, एंड उसका रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. मतलब जो आप शायद पैसे बचा रहे हो बाय नॉट विजिटिंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आप उससे 200-300 टाइम्स एक्स्ट्रा यू विल स्पेंड इन फिक्सिंग ऑल ऑफ दैट, बिकॉज इट विल रियली डैमेज योर स्किन. क्योंकि स्टेरॉइड से, जैसे आपने बोला, एक तो आपकी स्किन जो है वो पतली हो जाती है, राइट? उसकी वजह से आपकी स्किन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, बाल ज़्यादा आते हैं, फेशियल हेयर बढ़ जाता है, मतलब इसलिए कई बार जब पेशेंट आता है मुझे दिख जाता है कि इसने ये क्रीम लगा ली है, क्योंकि उनका चेहरा इतना क्लासिक हो जाता है वैसे कि नाउ वी नो कि ठीक है ऐसे हो गया. एंड ऑफकोर्स स्टेरॉइड इन जनरल कैन गेट अब्जॉर्ब्ड इन योर सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड क्रॉनिक यूजेज से उससे भी आपकी डायबिटीज, आपका हाइपरटेंशन, बोन हेल्थ सब इम्पैक्ट होता है. सो स्टेरॉइड इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कैन अप्लाई ऑन योर स्किन. It is probably the worst thing. Yeah, I understand, totally understand. And I have met many patients. मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, और उनको बोलते हैं अब क्या करें, क्या ये रिवर्स हो सकती है, पर उनको आप बोलेंगे तो ऑफ कोर्स उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता है. बट एक्चुअली 95% केसेस में इट्स इरिवर्सिबल. एग्जैक्टली, ट्रीटिंग दैट बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज अगर कोई इंसान है जिसने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना, मुझे ऐसे ही 50-60-100 रुपीज़ की क्रीम लेके लगानी है, दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी हु विल बी एबल टू अफोर्ड आगे जाके जो अभी फेशियल हेयर हुआ है उसका लेज़र करो, जो सेंसिटिव स्किन हो गई है उसका अलग से ट्रीटमेंट करो, जो पिगमेंटेशन हुआ है उसका तीसरा लेज़र करो. तो बहुत ना इसमें थोड़ा सा डॉक्टर्स भी अगर एजुकेट करें तो बेटर रहेगी. उसको थोड़ा नीचे लगाना है. लोग इंडिया में क्या करते हैं ना, पूरा गोल गोल घुमा लेते हैं प्रोडक्ट को, मतलब आई नो एंड देन दे कंप्लेन, इससे तो इचनेस हो रही है. अरे ऊपर लगाने को नहीं बोला था, वो अपने आप चला जाएगा. बहुत पोरस होती है. एग्जैक्टली, तो वो अच्छे से यूज करके, मतलब आई हैव लकीली नॉट एनकाउंटर्ड एक भी पेशेंट ऐसा जिसने उल्टा लगाया हो. एंड या तो लेट जाते हैं, सब खुश है उससे, पिलो पे लेट जाएंगे और फिर लगाएंगे, और फिर आंखें ऐसे ऐसे करेंगे, वो अंदर चला जाएगा आंख के,
हाँ नहीं बिल्कुल लकीली मैंने एक भी नहीं एक्सपीरियंस किया है ऐसे बट दैट एंड द कॉपर पेप्टाइड दैट वाज लॉन्च्ड these Thank two you so are like much, my yeah. favorites and the AHA lotion हाँ. AHA HQ वाला I keep it's very very good यार at least वो macular amyloidosis वगैरह में बहुत patients को I've given and even your Nigri Fix has a Nigri Light ना निगरी लाइट, हाँ. हाँ so that वो also थोड़ा I keep पोटेंट है. हाँ so तो इसलिए मतलब I dispense it Yeah, इसलिए yeah. So Dr. Mansi, it was amazing talking to you. हमें लगता है बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स को टच किया है आज लोगों के. शायद उनको कुछ हमारी बातें अच्छी लगे, कुछ ना लगे, बट आई थिंक वी आर टॉकिंग फॉर देयर ओन गुड. मुझे लगता है कि बहुत सारी अवेयरनेस अभी और बाकी है. अभी तो इंडिया में स्किन केयर अवेयरनेस की शुरुआत हुई है. हमने अभी बिल्कुल प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी में डालने शुरू किए हैं. तो जितने डालेंगे हम आगे उनकी और मैच्योरिटी देखेंगे. और मेन तो मतलब कब शुरू करेंगे, आई हैव टू रियली they are starting नहीं हाँ, they are बट बहुत starting. कम. Mostly मतलब at least my Youngsters patients हैं. who are there their appointments are booked by their wives हाँ. but ठीक है at least they are doing it. तो मेरा बस यही कहना है आप सबसे कि आप जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतनी जल्दी आप उसका इफेक्ट देखोगे. सब चीज़ों का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है. जैसे रोज जिम जाते हो, रोज अच्छा खाना खाते हो, सबका एक टाइम लगता है और स्लोली यू विल सी द रिजल्ट्स. सेम स्किन केयर है. आप फिक्सरमा लगाओ या कोई और ब्रांड लगाओ, पर लगाओ. और अगर आपको एक्ने है उसको फिक्स करो, क्योंकि जब वो स्कार्स छोड़ देगा फिर उसको ठीक करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा. सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट राइट. Amazing having you. It was so interesting talking to you. Thank you. It was really lovely doing this. Thank you so much for having And me. more power to you. Thank you, you too. सो प्लीज़ कमेंट बिलो अगर आपको किसी और टॉपिक पे लगता है हमें बात करनी चाहिए. आपको लगता है हमने और किसी इंग्रेडिएंट के बारे में बात नहीं की है, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं की है, तो कमेंट बिलो, विल डिस्कस. एंड इवन इफ यू थिंक आई शुड गेट सम स्किन केयर स्पेशलिस्ट, यू रियली नीड टू लिसन टू एंड हियर देम आउट. सो टेल मी, विल गेट हिम or her.